Assalamu alaikum viewers. I would like to welcome all of you here at the forum of Youth Leaders Balochistan Educational Forum. Today I am here to introduce a new course which is Conscience English Language course. As you know, before this, while in lockdown condition and in other situations, we have conducted many courses and we had a course of 1 month in which alhamdulillah we taught or we have been teaching almost more than 1000 students. So today we are going to introduce a new course and which will be consisted of 3 months. In this course, what we will learn and what we are going to teach and what is the aim of this course and what are the prerequisites for this course. We will be talking about it in shape of slides, but before going to slides, going for further discussion, I would like to tell you about Youth Leaders Balochistan Educational Forum, alhamdulillah, which is the biggest educational forum of Balochistan, providing the students the skills, standard education and moral values at affordable prices. And today we will be discussing about Conscience English Language course. So let's start please. वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को हमारा जो है कोर्स के मुतालिक आपको तमाम मालूमात और डिटेल्स आपको मिल सके. फर्स्ट ऑफ ऑल, the name of the course is Conscience English Language course, a course that will enable to read, write and speak English just within 3 months. ये इंशाल्लाह एक ऐसा कोर्स है, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो 3 माह के अरसे में इंशाल्लाह आप जो है किसी भी इंग्लिश के टेस्ट के लिए, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के लिए या किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए या जो IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है उसके लिए आप जो है आसानी से आप रेडी हो सकते हैं इंशाल्लाह. चलते हैं अपने इस कोर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. व्यूअर्स, एज यू नो, दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, so of course its aim are also like this. The first aim and objective of the course is what? That is to get ready for to prepare the students for the competitive exams like commission exams and job interviews, entry tests and other competitive exams. So the first objective of our course is this. And the second one, that is and the second one that is sorry the second objective of this course is to enable the students to reflect their own thoughts in English. As you know, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन हम जो है इस काबिल नहीं है कि हम अपने ख़यालात को इंग्लिश में लिख सके, हम अपने ख़यालात को जो है किसी के सामने किसी के साथ शेयर कर सके या हम अपने ख़यालात को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सके. जो हमारा कोर्स है, इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, यूथ को इस काबिल बनाएं कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में अपने ख़यालात का इजहार कर सके, अपने ख़यालात को वो लिख सके. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स इज़ introducing the direct learning methods instead of GTM. As you know, in English is a language
और लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हम GTM मेथड को स्टिल we have adopted the GTM method, which means grammar translation method. In Western countries, as they say, it an old or traditional way of teaching and language, teaching a language. So we are going to introduce the direct learning method in this course instead of grammar translation method. Inshallah, we will be teaching you English as easy as your local language. And the fourth objective, that will be article and content writing skills development. As you know, this is this is an opportunity for students. If they are able to write any content, they are able to write any article, so they can they can earn, they can do jobs at part time and earn, they can earn online for their educational purpose, and they can adopt as it as a professional as well. So article writing और content writing जिसकी बहुत ऑनलाइन मार्केटिंग में जो है, ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो हमारा जो है चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है। And the fifth one, which will be essay and pressy writing, that is of course the need of every student. ये भी तमाम स्टूडेंट्स की जो है नीड है। तो इंशाल्लाह हम जो है ऐसे एंड प्रेसी राइटिंग को भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकली हम इसको करते भी जाएंगे। ये तमाम चीज़ों को सिर्फ लेक्चर के थ्रू हम आप लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों को हम प्रैक्टिकली तौर पर करवाएंगे भी, और आप ऑनलाइन बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हम इनरोल भी करेंगे और आप लोगों को एंटरटेन कर लेंगे इंशाल्लाह। द सिक्स्थ वन, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग ऑफ टेक्निकल पेपर्स. Technical papers we have in different exams, so our an objective is also to help our students in solving of technical papers. Now come towards the prerequisites. What are the prerequisites for this course? इस कोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? Of course it's online course, so we need laptop, desktop, computer or smartphone and internet access. हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, और इसके साथ इंटरनेट तक हमें रसाई भी हमारे लिए लाजमी है, जैसा कि ये ऑनलाइन कोर्स है। सो ऑफ कोर्स वी नीड इंटरनेट एक्सेस। एंड द थर्ड वन, ऑपरेटिंग ऑफ व्हाट्सएप, यूट्यूब, केम स्कैनर एंड PDF रीडर। ये 3-4 सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके यूज़ करना आई थिंक सो एवरी स्टूडेंट knows about using and operating of WhatsApp, YouTube, cam scanner, जो कि एक आप पिक्चर लेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट जब होंगे आप अपने टेस्ट के पिक्चर लेकर अपलोड कर लेंगे हमारे या हमें सेंड करेंगे, तो आपको जो है कैम स्कैनर की ज़रूरत होगी, और आपको जो टेस्ट वगैरह भेजे जाएंगे, नोट्स भेजे जाएंगे, दैट विल बी इन PDF फॉर्मेट, सो you will need PDF reader as well. And the fourth one, a pen and 2 registers. 2 registers, one for your vocabulary building, and the second one for your daily assignments. 2 registers you will need. I think this is available for with any student or with every student, but you have to make a special register for this course if you are going to join us. Now come towards the outline of our course. What will be the outline of our course? As it is English course, so we need to go through grammar. First of all, we will be discussing grammar, parts of speech, tenses, exercise, active voice, passive voice, and narrations, direct speech, indirect speech, and some more important parts of grammar. हम ग्रामर के पार्ट में ये चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक मंथ से पहले हमारे जो है ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ हम डेली असाइनमेंट्स होंगे स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और वाचिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इंग्लिश कोर्स है, तो इंग्लिश के लिए हमें जो है सीखने के लिए वी नीड टू स्पीक English, we need to write English, we need to listen English, we need to watch English. So you will be given assignments on daily basis for speaking power, writing, listening and watching.
and you will be practicing these all like grammar as well in the shape of assignments. And the third one, that is vocabulary power or vocabulary building. Inshallah, we will be sending you on daily vocabularies on daily basis to build your vocabulary power and you to improve your vocabulary power. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस अंदाज में आप लोगों को न्यू वोकैबुलरी सिखाने का जो कंपटीशन है आप लोगों के दरमियान, इंशाल्लाह ये आप लोगों को किस तरह से जो है एक आप लोगों को एक अंदाज़े एक मेथड से आप लोगों को न्यू वोकैबुलरी सिखाने का जो है इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें अडॉप्ट किया जाएगा. द फोर्थ वन, लेटेस्ट एंड रिनोन आर्टिकल रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिसेस. आप लोगों को डेली बेसिस पर आर्टिकल रीडिंग और राइटिंग के लिए भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा इसमें. द फिफ्थ वन will be essay and precis writing. As I said before that it is the need of every student, so you will be practicing the essay and precis as well in this course. This was the outline of course, and come towards the class setup कि कैसे हमारी क्लास कंडक्ट होंगे, किस तरह होंगे. सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले आप लोगों को जो है जो टॉपिक होगा, जो ग्रामर का टॉपिक होगा या जो भी टॉपिक होगा वो आप लोगों को सेंड किया जाएगा. ठीक है, एक वीडियो में बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. फिर आपने जो है उस क्लास में आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा लेक्चर में. फिर उसके बाद लेक्चर में आप लोगों को एक एक्टिविटी दी जाएगी जो टॉपिक आप इससे पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में, उसकी एक्टिविटी आप लोगों को कराई जाएगी वाइल लेक्चर. एंड द थर्ड वन, जब आप लेक्चर में एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है उसके आंसर कीज़, उसका जो है सोल्यूशन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लाया जाएगा. इसको आप देखकर जो है अपने मिस्टेक्स को जो है कवर कर सकेंगे और उसको देख सकेंगे. एंड द फोर्थ वन, आप लोगों को फिर लेक्चर के दौरान नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपने 6 घंटे में कंप्लीट करना होगा. और ये पूरा लेक्चर जो है आप लोगों का 15 से जो है 20 मिनट के दरमियान का होगा. आप लोगों को डेली जो लेक्चर होगा वो इतना ही होगा. और इसी तरह जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो 5 वर्किंग डेज़ हैं, 5 दिन आप लोगों के लेक्चर्स होंगे. हफ्ते वाले दिन आप लोगों की रिवीजन का होगा, उस दिन लेक्चर नहीं होगी. एंड ऑन संडे देयर विल बी अ टेस्ट, वीकली टेस्ट, जो आप पूरा हफ्ता आप पढ़ लेंगे. ऑन संडे देयर विल बी अ ब्रीफ टेस्ट ऑफ द लेक्चर्स बेस्ड ऑन MCQs, जिसको आपने टेस्ट देना है और आपने टेस्ट में अपीयर होना है. ये क्लास का सेटअप था. इसके बाद हम डेली जो प्रोसीजर है वो किस तरह होगा. आप लोगों किस टाइम आप लोगों को लेक्चर्स 10 बजे के करीब मिल जाएंगे. इसके बाद जो है 6 बजे तक आपने जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जिस टाइम आपको टाइम मिले, आप वीडियो लेक्चर को देख कर उसको समझ कर फिर 6 बजे के बाद आपको जो कन्फ्यूजन होगी, आपके क्वेश्चंस होंगे, आप अपने क्वेश्चंस को हमें जो है व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें सेंड करेंगे, हमसे पूछेंगे. दैट विल बी इन वॉइस और इन रिटन फॉर्म. जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे 6 बजे से 9 बजे तक आपके कन्फ्यूजन, आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे. एंड एट लास्ट आफ्टर बिफोर 10 PM रात 10 बजे से पहले आपने अपने असाइनमेंट जो कि लेक्चर में दिए गए होंगे वो आपने व्हाट्सएप पर जो है अपने असाइनमेंट लिख कर उनका जो है साफ पिक्चर लेकर हमें आप व्हाट्सएप पे आपने सेंड करने होंगे. एंड कम टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस वाइल कंसाइज कोर्स. जैसे कि कोई भी काम हो उसके लिए जो है हिदायत होते हैं, तो इसमें इस कोर्स के लिए भी आप लोगों को कुछ हिदायत दिए जाएंगे कि आपने क्या करना है. ज़्यादा से ज़्यादा रीड, यू हैव टू रीड इंग्लिश. द मोर यू रीड द मोर यू know about English, and you have to write English, and you have to speak English, and you have to think in English, and you have to watch in English, but with consistency. नीचे दिया गया कंसिस्टेंसी, हमें जो है बिल्कुल इस्तिकामत के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने ये काम करने हैं. सो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस, एंड इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल टू टेक एग्ज़ाम ऑफ IELTS और एनी अदर टेस्ट. आप जो है IELTS के लिए आप तैयार हो जाएंगे, टॉफल होंगे उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे. आप जो है सिर्फ उसके जो है फ़ीस जमा कर आप इंशाल्लाह उसके एग्ज़ाम देने के आप अहल हो जाएंगे, और आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के अहल हो जाएंगे. आप जो है किसी भी इंग्लिश बुक को रीड करने के अहल हो जाएंगे. आप जो है आसानी से अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए आप जो है इंग्लिश आसानी से लिख पाएंगे इंशाल्लाह. अगर आप
कंसिस्टेंसी के साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, सो दीज विल बी gifted to you. And for registration, if you want to register with us, so there's given a number and also the website youthleadersbalochistan.com. आप वहाँ पे हमारे वेबसाइट पे भी आप लोग विज़िट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप जो है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें मैसेज करके आप करवा सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं जो कि नंबर दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर। इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह साइंस सब्जेक्ट्स एंड राइटिंग कोर्सेज, करियर काउंसलिंग, डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स प्रोमोटिंग के भी हमने कोर्सेज करवाए हैं जिसकी डिटेल आप जो है हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस कोर्स के इंट्रोडक्शन को आपने देख लिया होगा। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स जो है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। इंशाल्लाह we will try our best to provide you and facilitate you the best which you need. Thank you.